हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी एंटेड एस्पिरेंट के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके सिलेबस की यूनिट 3 जो कि है क्लासरूम मैनेजमेंट। उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्टाइल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। बिलीव मी, इट्स नॉट गिवन इन योर सिलेबस बट इट्स अ वेरी बेसिक एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड when he or she is going to learn about classroom management. So that's the thing, right? The teachers read between the lines and make you understand. So as I am trying to do that, so let's start this topic, classroom management style, and I can bet on this you will definitely get 1 to 2 questions from this section. Okay, so let's start then. Very firstly, we are going to just define what actually the classroom management style, classroom management, and then we will go to the different 6 types of classroom management. Okay, so let's start. But before starting, let me tell you that if you want to prepare for the entrance exam in a structured manner, do join my session, my course, which I have designed completely for you all. It's available on our app and its costing is 2,199. You can apply one coupon code that is given over here, less 800, and you can immediately get the lesser amount. And if you like my teaching, you can join this session. Okay, so let's move ahead. Types of classroom management style. So what actually classroom management is? As we have discussed in the previous sessions, classroom management is a managerial we can say skill. So a teacher must be a good teacher but also a good manager, because he or she has to manage the classroom very well. Then only the primary thing, that is teaching, you can do in your class. जब तक आप क्लास को संभालेंगे नहीं, मैनेज नहीं करेंगे, you can't do your basic वर्क, दैट इज टीचिंग, राइट. पहले क्लास को शांत करना है, देन अपना ऑब्जेक्टिव उनके सामने रखना है, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. ओके, कैसे हम ये सब करेंगे ये मैंने आप सभी लोगों को डिटेल में बताया है, बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मैनेजमेंट स्टाइल. सो लेट मी पिक द कलर फॉर दिस पेन. Yes, and now let's move ahead. So classroom management style, what it is actually. So classroom management, it provide an environment for learning, for peer group, right, for the people. So in the classroom management style refer to the different approaches teacher use to maintain order, manage student behavior, foster a conducive learning environment. So टीचर का काम है टू मेंटेन द ऑर्डर इन द क्लासरूम, टू मेंटेन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एंड क्रिएट अ कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, सो दैट जो एम लेकर के आज आप क्लास में गए हैं टू टीच समथिंग वो कंप्लीट हो पाए, राइट. Now, these styles are often influenced by teachers' beliefs, discipline, learning, and their role in the classroom. Now, we know that every person, every individual is different from another, right? So, in the same way, teacher is different from one another because they have different set of values. Okay, their belief is different. So that's why their management of classroom is also different. So what kind of management can be in a classroom? That we are going to study today. So very firstly, authoritarian management style. Now authoritarian management style, what does it mean? It means that, just a second, yes, इज हाईली कंट्रोल. सो अथॉरिटेरियन जो टीचर होगा बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखने वाला अपनी क्लास पर. स्ट्रिक्ट रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन होगी उनकी. दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल इन द क्लासरूम. टीचर्स यूजिंग दिस स्टाइल फोकस ऑन ओबीडियंस, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑफ्टन यूजिंग पनिशमेंट टू इन्फोर्स रूल. और अगर इनके रूल्स टूटते हैं so they also punish student. So that is authoritarian characteristic. क्या है? It's a teacher centered approach, clear and rigid rule with little flexibility. बहुत कम flexibility इसमें होती है और clearly rigidly अपने rules एक्सप्लेन करते हैं एंड फॉलो करवाते हैं क्लास में. स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन एंड कंट्रोल. स्टूडेंट हैव लिटिल ऑटोनॉमी और इनपुट, मतलब आज़ादी, फ्रीडम बहुत कम होती है इसमें. देन मूविंग टू द प्रोज.
फ़ायदे क्या हैं? स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट रहेगा, क्लियर एक्सपेक्टेशन रहेगी, सो जो टीचिंग है वो बहुत ईजी वे में हो पाएगी. बट mind my words, I'm talking about teaching, not about the learning. It may happen that classroom is very strict, very intensive environment there, so that may happen that students are not getting what teacher is trying to say. ओके, सो बहुत ज़्यादा अगर हार्ड इन्वायरमेंट भी हो जाएगा, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट, सो स्टूडेंट डोंट लाइक दैट, और उन्हें पसंद नहीं है, सो दे आर नॉट गेटिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू टीच देम. ओके, सो इमीडिएट कंप्लायंसेस फ्रॉम द स्टूडेंट. जल्दी से स्टूडेंट ऐसे टीचर्स की बात मान लेते हैं जो अथॉरिटेरियन होते हैं नेचर में. देन कॉन्स क्या है इसके? टू क्रिएट अ स्ट्रेसफुल एंड फेयरफुल इन्वायरमेंट, ये इसके आप कह सकते हैं कि नुकसान है. लिमिट स्टूडेंट क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंस, स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी इसमें कम हो जाती है. में सप्रेस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट इसमें बहुत कम हो जाता है और उनका मोटिवेशन लेवल भी बहुत डाउन इसमें चला जाता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अथॉरिटेटिव. देखिए, पहले था अथॉरिटेरियन, नाउ देयर इज अथॉरिटेटिव, दैट इज अ बैलेंस्ड एंड रिस्पॉन्सिव. Okay, balanced and responsive classroom management style. Now here authoritative style blends structure and discipline with warmth and responsiveness. So यहाँ पर it's a blended thing, right? यहाँ पर structured भी है, discipline भी है, थोड़ा freedom भी है, responsiveness भी है, warmth भी है टीचर की तरफ से. Teachers set high expectation but also support student by encouraging independence. So इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंस को यहाँ पर इंकरेज किया जाता है, बट एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, रूल्स भी इस क्लासरूम में होते हैं. सेल्फ रेगुलेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पर इंकरेज किया जाता है. ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट. ओके, क्लियर रूल्स. कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस क्लासरूम के? क्लियर रूल्स विथ एक्सप्लेन्ड रीजन बिहाइंड देम. हर एक रूल जो इन्होंने बनाया है उसका ये रीजन भी देंगे, सो दैट स्टूडेंट कैन गेट कनेक्टेड विथ कि टीचर ने अगर ऐसा रूल बनाया है तो क्यों बनाया है, राइट. देन नेक्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. यहाँ पर अच्छे बिहेवियर के लिए अच्छे बिहेवियर को प्रमोट किया जाता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिए जाते हैं, एंड फीडबैक जो होते हैं दे आर नॉट मीन्स इन जनरल दे आर कंस्ट्रक्टिव, जिसका यूज करके बच्चे अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, राइट. देन टीचर इज बोथ फर्म एंड अप्रोचेबल. टीचर आप कह सकते हैं कि फर्म भी है ना, कठोर, थोड़ा हार्ड भी है, बट इट्स अप्रोचेबल, आप अपनी बात उनसे कह सकते हैं. स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टिसिपेट एक्टिवली. और यहाँ पर बच्चों को इतनी छूट होती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें. प्रोज क्या है इनके? इनकरेज स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो खुद से डिसिप्लिन में रहना स्टार्ट करते हैं. प्रमोट अ पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल क्लासरूम इन्वायरमेंट. बैलेंस कंट्रोल विथ स्टूडेंट ऑटोनॉमी. सो कंट्रोल भी रहता है और स्टूडेंट ऑटोनॉमी भी इसमें रहती है. कॉन्स क्या है इसके? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट टू बिल्ड रिलेशनशिप. देखो, क्लासरूम में टीचर भी जो है फर्म है ना, एंड बट इट्स एन अप्रोचेबल, राइट. सो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने स्टूडेंट से इंडिविजुअली रिलेशनशिप बना पाएंगे, राइट. यू अंडरस्टैंड व्हाट योर स्टूडेंट इज, ठीक, तभी आप वो ट्रस्ट, वो रिलेशनशिप बना पाएंगे. सो दैट मेकिंग दैट रिलेशनशिप रिक्वायर्स टाइम. Okay, so that's why it needed time. Not always effective with student who need more structure. तो कुछ students होते हैं वो highly objective होते हैं, मतलब कि उन्हें आना है, पढ़ना है, सीखना है. They don't want to get in conversation with teachers. They don't want to make relation or come into the good books. Not the good books, but they don't want to communicate more with teachers, right. So they are very structured. जिन्हें बस आना है, उन्हें पढ़ना है. So that method with not goes with that type of a student. Okay, I hope I'm clear. And then permissive or laissez-faire, friendly. So in permissive style, teachers are lenient and may avoid enforcing rule consistently. So ये थोड़े से lenient होते हैं, friendly होते हैं. जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर डांट, जहाँ हंसी मजाक है वहाँ हंसी मजाक.
While they care about student well-being and build a strong relationship, they may fail to maintain control or set clear boundaries. So इनके रिलेशनशिप तो बच्चों के साथ स्ट्रांग होते हैं, बट ये वो क्लियर कट बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हैं और समटाइम्स दे फेल कंट्रोल ऑन द क्लास. ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनके? फ्यू रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ्टन इनकंसिस्टेंटली इन्फोर्समेंट. तो कुछ ही रूल होते हैं, कुछ ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट वो कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं होते हैं. एम्फेसिस ऑन स्टूडेंट्स फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, ज़्यादा फोकस स्टूडेंट फ्रीडम और ऑटोनॉमी पर होता है. टीचर्स आर फ्रेंडली बट मे नॉट होल्ड स्टूडेंट अकाउंटेबल. राइट, प्रोज क्या है, फायदे क्या है? फॉस्टर स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहती है. इंकरेज क्रिएटिविटी एंड स्टूडेंट एक्सप्रेशन. देन कॉन्स क्या है इनके, नुकसान क्या है लेजी फेरी के? कैन लीड टू क्लासरूम डिसऑर्डर एंड लेक ऑफ फोकस. डिसऑर्डर यहाँ पर हो सकता है जिससे कि बच्चों का फोकस जो टास्क चल रहा है क्लास में, जो प्रोसेस चल रही है, उससे हट सकता है. स्टूडेंट में डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट फॉर रूल्स. में नॉट डेवलप, सॉरी, स्टूडेंट जो है, देखिए दो फेस हैं, या तो सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ डिसिप्लिन भी आ सकता है और नहीं भी आएगा. तो कौन से इसके क्या है कि क्योंकि ज़्यादा फ्रेंडलीनेस यहाँ हो जाती है कि ये संभावना ज़्यादा है कि उनमें सेल्फ डिसिप्लिन और रूल्स को लेकर के रिस्पेक्ट नहीं होगी, है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड लाइक सिचुएशन. लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू द लेक ऑफ स्ट्रक्चर. सो जो ऑब्जेक्टिव लेकर के आप गए हैं, दे मे बी कॉम्प्रोमाइज. आप जो सोच के गए थे कि आज इतना तो पढ़ाना है, ये बच्चों को सिखाना है, उसको लेकर के आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. इंडल्जेंट और नॉन इंटरवेंशनिस्ट. सो ये ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते. दिस स्टाइल गिव्स स्टूडेंट अ ग्रेट डील ऑफ फ्रीडम विथ minimal interference or control from the teacher. The teacher act more as a facilitator or observer, intervening only when absolutely necessary. तो ये इंटरफेयर तभी करेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अदरवाइज ये फैसिलिटेटर और ऑब्जर्वर की तरह उनको ऑब्जर्व करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? और वेरी फ्यू रूल्स एंड गाइडलाइंस, मिनिमल टीचर इंटरवेंशन इन स्टूडेंट बिहेवियर, स्टूडेंट्स हैव कंप्लीट फ्रीडम इन लर्निंग प्रोसेस. ओके, प्रोज क्या है इसके? आई होप नाउ अब ये टर्म्स आपके लिए इजी है. मैक्सिमम स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, ये फ़ायदा है इसका कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलती है ना, ऑटोनॉमी मिलती है. कैन फॉस्टर क्रिएटिव एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वो अपने से सोच सकते हैं, जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी एक्टिविटी डिसाइड की गई है, उसे अपने से आगे बढ़ाते हैं. कॉन्स क्या है? कैन लीड और कॉज एंड लैक ऑफ डायरेक्शन, है ना, कह सकते हैं कि झोल झमाला हो सकता है क्लास में. ओके, एंड डायरेक्शन लेस हो सकती है आपकी क्लास. स्टूडेंट्स मे नॉट डेवलप नेसेसरी बाउंड्रीज और सोशल स्किल्स. जो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, क्लासरूम में कैसे रहा जाता है, ये सोशल बाउंड्रीज या सोशल स्किल्स वो लेक कर सकते हैं. लर्निंग कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनकंसिस्टेंट. तो क्योंकि वो कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कुछ तो वो सीखेंगे, बट दे कांट मेक द प्रॉपर कनेक्शन व्हाट दे आर लर्निंग एक्चुअली. Okay, now next, democratic or collaborative inclusive. Democratic style of democratic classroom management style. It's in nature it's a collaborative and inclusive, सबको लेकर के चलने वाली ये classroom होगी. Democratic style is characterized by collaboration between the teacher and the student. Rules and consequences are often decided together. Students have to say in how the classroom is run. So ये डेमोक्रेटिक है, जहाँ पर आप हर एक को राइट है अपनी बात कहने का, अपने लिए रूल्स डिसाइड करने का. सो टीचर और स्टूडेंट मिल करके इस क्लासरूम के रूल्स डिसाइड करते हैं, सो दैट लेटर ऑन स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फॉलो द रूल्स बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग दोज रूल्स. राइट, वो उन रूल्स को बनाने में इन्वॉल्व थे. सो नाउ दे आर मॉरली रिस्पॉन्सिबल. तो उन्हें लगता है कि यार हमने ही तो ये रूल बनाए थे, तो हमें तो एटलीस्ट फॉलो करने चाहिए. ओके, so that is the main key of this. The focus is on mutual respect and shared responsibility. Now talking about more characteristics, the teacher involves student in decision making. Teacher student को decision making obviously rule making में involve करता है. कैसी task कैसे होगी इस पर involve करता है. Right?
ओके, emphasis on mutual respect and collaboration, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और कोलेब्रेशन पर इसमें emphasis रहता है. Students are encouraged to express their ideas and opinions. जैसे कि freedom इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा, right? And they students can express themselves, their ideas and opinions. Rules and consequences are negotiated. मतलब मिलजुल करके वो डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कोई रूल तोड़ा तो उसका क्या पनिशमेंट होगा, एंड निगोशिएशन वहाँ पर है. ओके, नाउ प्रोज. व्हाट आर द प्रोज? Pros: foster a sense of ownership and responsibility among the students. So एक responsibility आ जाती, एक ownership आ जाती, because they are involved in the it's a collaborative classroom, right? So whatever is going on, they have decided together, right? So encourage critical thinking and problem solving. Then a positive relationship between teacher and student. Cons क्या है इसके? So require a lot of time and negotiation. Can be challenging to manage a large classroom. So it's an ineffective method when the classroom is very large. Okay, if you are dealing with the 40 and 45 students, and it become impossible for you to be democratic, right? Yeah. Now, may not work well with students who need more structure and guidance. As I told you, some students are very much structured. They just want to study, come study and go. Okay. Now, the next one is, and the last one is indifferent, detached or uninvolved classroom management style. So, in this type of style, teacher is not at all involved. He doesn't care what's going on in the classroom. So, the indifferent style is characterized by the lack of involvement from the teacher. This style may arise from teacher burnout, lack of interest, or insufficient training in classroom management. So, teacher doesn't care actually. उसे इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्लास में क्या चल रहा है, क्या होगा. नॉट वरीड. ओके, बंदा ये बिंदास है, राइट, लाइक दैट. सो इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट की इनसफिशिएंट ट्रेनिंग के कारण भी इस तरह की क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल देखने को मिलती है. सो क्लासरूम इज ऑफ्टन कोएटिक एंड लर्निंग आउटकम्स आर टिपिकली वेरी पुअर. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लिटिल टू नो रूल्स और एक्सपेक्टेशन. ओके, एंड स्टूडेंट्स आर लेफ्ट टू मैनेज देमसेल्फ. अपने आप मैनेज करने के लिए बच्चों को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोज, क्या क्या हैं इसके फायदे? वेरी फ्यू बेनिफिट्स ऑफ्टन लीड टू मिनिमल लर्निंग. कोई ज़्यादा इसके बेनिफिट नहीं है. जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्लासरूम का, दैट इज टू एक लर्निंग इन्वायरमेंट, वही इससे गायब रहता है. कौन से इसके बहुत हैं? देन लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, लो स्टूडेंट मोटिवेटेड एंगेजमेंट, पुअर लर्निंग आउटकम एंड क्लासरूम बिहेवियर. सो that is all about the classroom learning classroom management styles. It's a very, very important topic, and I thought that I should discuss with you all, and definitely you will get a question from this section. So I hope this session will work for you all, and soon we will meet into the next session. Till then, bye bye, take care.